Keep your cameras on, both of you. Switch on your cameras. Okay, we are starting now. Yeah, we have completed till question number 8, I think, in exercise 20C. Yes, sir. Yes, sir. Sir, will we do reasoning? No, not today. We will be doing reasoning, but not today. Okay. So let's start with question number 9. Yes, exercise 20C, question number 9 we have to do. Question 9 is The height is, sir, height is 6 centimeters. which question? Which question are we talking about? Question. I'm talking about a question. Your voice is not clear, Utkarsh.
Okay, question 9. The base of a parallelogram is twice its height. If the array बिल्कुल same है. Question 8 की तरह है. Question 9 बिल्कुल you will do it in homework. Question 9 is same as question 8. So do it in homework. Question 8 ये मैंने बोर्ड पर किया हुआ है. This we have already done. I hope you all have understood question 8. If you have understood, then you can easily do question 9 and homework. Okay. Yes, sir. Question 10. Find the area of a rhombus in which अरे बताइए rhombus का एरिया निकालना है उसकी साइड और हाइट गिवन है. बताइए कौन सा फॉर्मूला मुझे यूज करना चाहिए. Tell me question number 10. Sir, area is equal to B into H. Sir, or we can do 1/2 multiplied by diagonal 1 or diagonal 2 multiplied by diagonal 2. हम डेटा डिफाइन कर सकते हैं. Sir, we are on 10th part 1. Question 10. First part. There is a rhombus. जिसकी आपको साइड गिवन है. What is the rhombus? It is 12 centimeters. And the height of the rhombus is 7.5 centimeters. आपको एरिया फाइंड करना है. मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए. आई शुड यूज द सेकंड फॉर्मूला. Sir, base into height. A base into height. Base into height. Why? Because the diagonals are not given in this question. अगर diagonals given नहीं है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. Base into height. Second. Yes, second formula. So area equals to B into H. Therefore, area will be 12 into 7. तो कितना आया है. 15 into 6. 90 centimeter square. 90 centimeters square. सही निकाला है. देखिए मैंने. Yes, sir, 90 centimeter square. Sir, 90. Sir, second question. 2 decimeters is about 20 centimeters. The second we have to do by ourselves. Second is homework. Excuse me, sir. Yes. Sir, in second question, 2 decimeter will become 20 centimeter. Absolutely correct. 2 decimeter you will convert in centimeters and that will be absolutely right. Question 11. Second part Sir, of in this we will use first formula. yes. इसमें आपको दोनों diagonals की length given है. आपको area find करना है. That means D1 is 16 centimeters and D2 is 28 centimeters. ठीक है. Find the area. Area equals to half A into the rhombus. अब मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. फर्स्ट वाला. Because diagonal is nothing. So half into D1 into half into D1 into D2. This is the formula. Half into 16 into 28. यानी कि 8 into 28. 28 का डबल 56. 56 का डबल 2 to 4 centimeters. Sir, 2 to 4 meters square. Sir, 220. 224 centimeters square. Okay. Sir, 224 meters centimeter. Yes. Question 12 कह रहा है find the area of rhombus each of whose side of which measures 20 centimeters and all whose diagonal is 24 centimeters. अच्छा. Question 12.
ये हटा देंगे ना, हटा देंगे। Yes, sir. सेकंड पार्ट इज होमवर्क। Sir, in second part, what we have to do? 11th second. बेटा जो सब चीज दी हुई है आपको 5 dm सॉरी 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर यानी कि 85 सेंटीमीटर हो गए। 85 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर निकाल लो एरिया। Sir, 2380 centimeter square. Yes, sir. 2380 centimeters square. Question 12. Find the area of a rhombus whose both side is 20 centimeter and whose diagonal is 24 centimeter. यहाँ पर आपको rhombus बनानी है। सामने ब्लॉक बनाना है। वरना माइनस वीडियो चालू है। आपके कौन सा जरूरत है? Is it looking like a rhombus? Yes. ठीक है काम चल रहा है। Yes, sir. ABCD is a rhombus जिसमें BD diagonal है AC diagonal है। Now the side of the rhombus is 20 centimeter. We know all the side in a rhombus. Side कितनी दी हुई है 20 centimeter। Okay. And one of whose diagonal is 24 centimeter. मान लेते हैं जब diagonal आपकी AC है that is 24 centimeter. Diagonal AC length कितनी है 24. Sir, we can use Pythagoras theorem. Yes, हमको मालूम है किसी rhombus में diagonal जो होती है वो दोनों एक दूसरे को bisect करती हैं। पता है आपको? Yes, Yes, sir. Rhombus of a diagonal, sorry, Yes, diagonal sir. of a- Yes, sir. तो क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ AO equals to 24 upon 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर से बोल सकता हूँ मैं AO। yes, sir. हाफ ऑफ 24। अच्छा BO AB हमको पहले से ही मालूम है 20 सेंटीमीटर से देखिए 20 सेंटीमीटर AB हमको पहले से ही पता है। अब हम BO को मान लेते हैं x थोड़ी देर के लिए BO को मान लिया x और हमें ये भी पता है that the triangles of a rhombus are perpendicular। तो एंगल AOB is equal to 90 degrees। क्यों है 90 डिग्री का? Because diagonals are perpendicular। ये 90 डिग्री क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि I will find the length of x। x की वैल्यू मैं पाइथागोरस लगाऊंगा ट्रायंगल AB। पाइथागोरस कौन से ट्रायंगल में लगती है? पाइथागोरस थ्योरम आप कौन से ट्रायंगल में लगाते हैं? ओनली Sir, 90 The right. degree. The right Right triangle. Right triangle. The right triangle. yes only in right triangle to right triangle 90 triangle AOB is 90। क्यों है 90? Because diagonals of a rhombus are perpendicular। ये rhombus की प्रॉपर्टी है। ठीक है। Sir, the diagonal bisect each other at 90 degree angle. In triangle AOB अब हमको क्या पता है? हाइपोटेन्यूज कौन सी है? AB। AB square is equal to AO square plus BO square। AO square plus BO square। AB square equal to AO square plus BO square। इसके आगे AO AB square की वैल्यू लगा देंगे 20 square equals to AO square negative BO square यानी कि x। दिख रहा है ये सारा? यस। तो 20 square 400 12 16 is equal to x. 144 equals to 16 equals to x. x square x equal to square root of 256। 256 का स्क्वायर में होता है 16 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आई है 16।
यानी कि दूसरी डायगोनल की लेंथ क्या हो गई, मुझे बताइए व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल? 16 into Sir, 32. 32, एब्सोल्युटली करेक्ट। 32. ED equal to 2 multiplied by 2x, क्यों होगी 2x BD आपकी, क्योंकि BO sir की because it's the half. यस, फिर से वही चीज यूज करेंगे डायगोनल फाइंड। तो BO क्या है, हाफ ऑफ BD है, तो BO का डबल कर लेंगे, BD मिल जाएगा। BD की लेंथ कितनी हो गई, 16 into 2 यानी कि 32 सेंटीमीटर। BD इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको एरिया निकालना है, फॉर्मेलिटी रह गई। एरिया इक्वल्स टू हाफ इनटू d1 इनटू d2। हमका होगा हाफ इनटू d1 इनटू d2। मुझको दोनों डायगोनल्स मालूम है, कितनी लिखनी है। फर्स्ट वाली में 24 ये लिखी है, AC की लेंथ कितनी है 24, BD की लेंथ कितनी है 30। So area equal to half into 24 into 32, यानी कि 16 into 24। बताइए कितना आया 16 into 24? Sir 344. 384. 360 प्लस और यस 384। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर पे दिख रहा है बोर्ड पर, 384 लिखा हुआ दिख रहा है। Yes, sir. थोड़ा सा ब्लर आ रहा है तो दिख रहा है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है बेटा, बताओ समझ में आ गया? बताइए, कोई डाउट हो तो बताएं। Understood, sir. No, sir. No sir. Sir, no doubt. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ rhombus is this, if one of the diagonals is 19.2 centimeter, find the length of the other diagonal। बहुत इजी क्वेश्चन है। Sir, almost like this question. नहीं, इससे तो बहुत इजी है, इससे बहुत इजी है बेटा। मैं पाइथागोरस नहीं लगानी पड़ेगी क्वेश्चन 30 में। We will Sir, not in this we only have to use that formula. this area equal to half into product of diagonal। I hope you all have noted this down in your copies। सबने नोट कर लिया? नहीं करा है बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, जो बचा हुआ है बाद में नोट कर लेना, या फिर आप लोग वीडियो ऑन करके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो दिख रहा है तो। क्वेश्चन 13 ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 18 पॉइंट सॉरी 148.8 सेंटीमीटर। एरिया 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। d1 की वैल्यू दे दी है, वन ऑफ द डायगोनल्स इज कितना दी है 19.2 सेंटीमीटर। 19.2 सेंटीमीटर दूसरी डायगोनल फाइंड करेंगे। So area equals to second diagonal, you have to find out the second diagonal. So use the same old formula, area equals to half into d1 into d2, half into d1 into d2। बस इससे मुझे d2 मिल जाएगा। एरिया कितना है 148.8 equals to half into d1 कितना है आपका, d1 है 19.2 एंड d2 आपको फाइंड करना है। ओके Sir, D2 is 15.5 centimeter. हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे d2 मिल जाएगा आपको। तो d2 equals to 148.8 into 2 upon 19.2। आप डेसिमल वगैरह हटा दीजिए,
तो 1488 upon 192. 1488 into 2 upon 192. 96. One four eight eight two 192. इसको सॉल्व करके बताइए कितना आता है? Sir, how the decimal has rough? बेटा दोनों न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के आगे सिंगल डिजिट है, तो आप डेसिमल को डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। आगे बात समझ में आई? Okay. Because if we add 0 and 0, so 0 and 0 will be cutted from each. Yes. It is 15.5 centimeter. सिंप्लीफाई करने के बाद बता रहा हूं मैं 15.5 सेंटीमीटर। आप लोगों की Sir, the answer is 15.5 centimeter. Sir, 15.5. आप लोगों की कॉपीज चेक कर रहा हूं मैं आजकल। रीजनिंग कितनी हो गई है? रीजनिंग में किसी भी बच्चे के फुल मार्क्स नहीं है, बड़े अफसोस की बात है। किसी के भी तीनों सेक्शन में किसी के भी फुल नहीं है रीजनिंग। Sir, please tell the marks of reasoning. बेटा आई कांट टेल यू द मार्क्स लाइक दिस, बट मैं इतना बता दे रहा हूँ फुल किसी के नहीं। इनफैक्ट Sir, in math. यस, मैथ में अभी कॉपीज चेक हो रही है। should be Sir, जल्दी करिए, 15 मिनट रह गए हैं। ये कौन बोला? कौन बोला ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सेम है, सेम है, नहीं इसी में अलग है। The area of a rhombus is this and its perimeter is this, find its height. Okay. Area is equal to थोड़ा सा अलग है, 119 centimeter square. Easy है, but it is very easy. Perimeter is 56 centimeter. क्या मुझे इससे साइड मिल जाएगी rhombus की? Let us assume that the side is this. तो perimeter कितना होता है? 4 into side, ये होता है फॉर्मूला 4 into x। अब perimeter 56 है, so 4 into x equal to कितना मिल गया? 56 upon 4, यानी कि x equals to 14 सेंटीमीटर। ये आ गई रोम्बस की साइड की लेंथ। समझ में आया क्या बोला मैंने? एरिया गिवन था 119, पेरीमीटर गिवन था 56। पेरीमीटर की हेल्प से मैंने साइड ऑफ रोम्बस निकाल ली। रोम्बस के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 into साइड होता है बेटा। क्यों होता है 4 into साइड? बिकॉज़ इन अ रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल। Sir, but in हाँ, sir, but in this we have to put the height. अरे हाइट अभी निकालेंगे बेटा, अभी तो सिर्फ हमने साइड निकाली है रोम्बस की। रोम्बस की साइड कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। अब हम रोम्बस की हाइट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एरिया। एरिया इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है। बेस क्या होता है? बेस का मतलब क्या होता है? साइड। रोम्बस की साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर। एरिया मालूम है और बेस मालूम है। एरिया इज 119, बेस इज 14, हाइट कितनी है? h है। हाइट निकाल लीजिए इसको सोल्व करके। 8.5 सेंटीमीटर आ रहा है, देखो
So the answer is 8.5 centimeters. Yes, sir. 8.5 सेंटीमीटर, ये 14 डिवाइड में चला जाएगा, हाइट आ गई 8.5 सेंटीमीटर। बताइए कोई डाउट हो तो बताएं। No, sir, no doubt. Sir, I think this is Sir, the today easiest. this exercise will also be completed. Sir, I think this is the easiest question in all the 14 questions. यस, अभी तक वन ऑफ द इजीएस्ट। हाँ जी बेटा, आलिम क्या कह रहे थे? Sir, today we will complete this exercise. One day, one exercise. Yes. Question 15 is saying the area of a rhombus is this and its height is this. Find the length of each side of the rhombus. अरे, this is homework. आपको बस बेस निकालना है rhombus. Height given है, area given है, base find करना है. So do this in homework. 15. 16 देखिए. हाँ जी. Sir, the formula would be that base into height. हाँ, area equal to base into height formula use करेंगे, उससे आपको base मिल जाएगा. Okay. 16. The area of a rhombus is equal to area of a triangle having base 24.8 centimeter and the corresponding height is 16.5 centimeter. If one of the diagonals of a rhombus is 22 centimeter, find the length of the other diagonal. Okay, easy question है. देखो बेटा, मैं बताऊं what is the question saying. Don't worry. There is a triangle and there is a rhombus. Their areas are equal. Area of triangle, that means area 1. It is given that area of given है, ये क्वेश्चन में मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया इस रोम्बस के एरिया के एरिया 1 इक्वल्स टू एरिया 2, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। आ रही है बात समझ में? इतना क्लियर है? बताइए। Yes, sir. ट्रायंगल जो है उसकी बेस 24.8 सेंटीमीटर। Yeah. 24.8 centimeters is the base of the triangle. 24.8 centimeters. Okay, and the corresponding height of the triangle is 16.5 centimeters. Height कितनी है? Triangle की 16, ये height होती है, इसको बोलते हैं height. 16.5 centimeter इसकी height है. ठीक है बेटा, ये पॉइंट लगाया मैंने टेस्ट। Why is area 1 is equal to area? बेटा ये क्वेश्चन में लिखा है, मैंने नहीं बोला अपनी बात से, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ऐसा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ट्रायंगल का एरिया रोम्बस के एरिया के इक्वल है, क्वेश्चन में कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। समझ में आई बात? इसलिए मैंने इक्वल लिखा। अब रोम्बस की एक डायगोनल आपको गिवन है, कितनी है? 22। रोम्बस की एक डायगोनल की लेंथ आपको 22 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, एक डायगोनल आपको 22 सेंटीमीटर की गिवन है, दूसरी डायगोनल फाइंड करनी है। बहुत आसान काम है। आइए देखिए, एरिया 1 ट्रायंगल के एरिया का क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये होता है ट्रायंगल का एरिया। क्या होगा? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। याद है? भूल गए? सर याद है? सर याद है। और रोम्बस का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ Diagonal 1 and multiplied by diagonal 2. Diagonal. d1 into d2, हाफ इनटू d1 into d2, ये होता है रोम्बस का एरिया। दोनों के एरिया का फॉर्मूला मैंने लगाया। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, हाफ इनटू बेस 24.8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है? 16.5। ओके, इधर हाफ, अरे हाफ से हाफ तो हम स्टार्टिंग में भी काट सकते हैं। d1 कितना है बेटा? 22, और d2 कितना है आपको फाइंड करना है। d2 मैं ये हाफ से हाफ काट रहा हूं, मल्टीप्लाई में सब कुछ काट सकते हैं।
22 आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड, ठीक है। तो 24.8, अब मैं इधर से डेसिमल हटा रहा हूँ, 248 into 165 अपॉन 22 into 100। ये 100 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि डेसिमल हटा दिए इसलिए लगाया। Sir, because decimal you have यस, removed 10 multiplied by 10. मतलब बेटा 2 से काट दिया, ये 2 से काट दिया, 124 आ गए। 11 से इसको 165 में काटेंगे 15 आ जाएगा। 124 into 15 कितने होते हैं, 124 62, 124 में 62 ऐड करो, 184 186 186, यानी कि 1.86 आंसर आ रहा है। देखिए चेक करिए डायगोनल रूट की वैल्यू कितना है, 1.86। चेक कर लो बेटा, और यही करा है मैंने, गलत हो सकता है। तो सर हमें पता है सही होगा। Sir, it's 18.6. 18.6, हाँ जी हाँ जी हाँ Yes, जी। sir. हाँ बिल्कुल सही बात है, 18.6 करेक्ट। तो D2 आपकी आ गई 18.6। 18.6 centimeter is the length of diagonal 2। बताइए क्लियर हो गया? Yes, sir. कोई डाउट हो तो बताइए। So please explain this question again. Yes, of course. There is a triangle and there is a rhombus. In the question, there is a triangle and there is a rhombus. It is given in the question that area of triangle, area 1 बोलते हैं, मैं इसको नाम तो कुछ भी दे सकते हो, आप पूरा लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो लिखने में थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने एरिया वो बोल दिया उसको, और कोई बात नहीं। So it is given in the question that area of triangle is equal to area of rhombus. ये दोनों आपको equal given है question, ठीक है। अब I have ये और क्या क्या गिवन था आपको, ट्राइंगल का बेस गिवन है 24.8 सेंटीमीटर, बेस आपको ट्राइंगल की गिवन है, ट्राइंगल की हाइट भी गिवन है 16.5, रोम्बस की डायगोनल, वन डायगोनल गिवन है कितनी है 22, सेकंड वाली डायगोनल आपको गिवन है, मैंने एरिया 1 यानी कि ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा, कितना होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, क्लियर। उसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिखा हाफ इनटू d1 इनटू d2, हाफ से हाफ दोनों जगह से कट जाएगा, देखिए काट दिया मैंने, हाफ से हाफ काट दिया, बेस की वैल्यू लगा दी, हाइट की वैल्यू लगा दी, d1 की वैल्यू लगा दी, पता थी d1 कितनी है 22 लगा दी, d2 मुझे नहीं पता है, मुझे फाइंड करना है d2, तो मैं इसको सॉल्व करके d2 मैंने फाइंड कर लिया, सिंपलीफाई करा बस, और कुछ नहीं करना। d2 कितना आ गया 18.6, बताइए क्लियर है? वेट, Yes, sir. Okay, sir. Sir, where are the points? कौन से पॉइंट्स? पॉइंट्स बेटा Okay, sir. I understood. Sir, you have added into 100. Okay, sir. यस वेरी गुड, Sir, excuse me, sir. यस यस यस, Sir, it is written 15 or 18. वेयर दैट Sir, D2. Yes, sir. 18.6 सेंटीमीटर, मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं सामने आता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाता है, देखना ऐसा है कि ये हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए अब ज्यादा क्लियर हो Sir, गया? Yes, sir. sir, 5 लग रहा है 8. नहीं नहीं बेटा 18 है वो, दैट इज 18.6, वो थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उसकी वजह से, ओके। Okay, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है वो दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस है। अरे वाह, वेरी इंपॉर्टेंट एडवांस फॉर्मूला आ गया, आइए फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के दो तरीके हैं, हम नोट कर लेते हैं, आइए ये तीनों फॉर्मूले आपको नोट कर रहे हैं।
Sir, which three formulas? थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा मुझे, आज आप नोट कर लीजिए, एक्सप्लेन मैं आपको कल कर दूंगा। Sir, which three formulas we have to write? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फर्स्ट फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि मैंने यहाँ पर भी यूज करा है, यही पुराना Yes, sir. फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये आपको नोट करना है। एक फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो क्या होता है? देखिए ओपन पेज नंबर 239, पेज नंबर 239 ओपन करिए। Sir, there are three formulas given at the top. फोर फॉर्मूला दिए हुए हैं, देखिए ध्यान से, Yes, sir. टॉप पर देखिए 4 फॉर्मूला गिवन है, 238 के लास्ट में और 239 के बिगिनिंग में। तो इसमें आपको फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला नोट करना है। कौन कौन से? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीन फॉर्मूले Sir, आपको, why Please not tell the again. second one? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीन फॉर्मूले नोट कर लीजिए। Sir, why not the second one? So, तो वो कॉमन सेंस वाली बात है, जब हमने फर्स्ट पढ़ लिया, Excuse me, sir. हमें वैसे ही मालूम है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी भी एरिया वही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल में उसकी जो परपेंडिकुलर वाली साइड जो होती है उसी को हम हाइट बुलाते हैं, ये हमको बचपन से मालूम है, ये बात इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ जी, Okay, sir. फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करो। Sir, we have to write which formulas? फर्स्ट पेज नंबर 238 खोलो, 238 पेज नंबर खोलिए, उसमें एकदम बॉटम में जाओ, देख रहे हो? Sir, we have to write area of triangle 1/2 multiply by base multiply by height. बेटा सुनो सुनो, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, Written. ये वाले नोट कर लो, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, जल्दी से कर लो, Sir, second नहीं उतारना? ये सब नहीं करना है, ओके? Okay, sir. Okay, so tomorrow we will continue. I will explain these formulae, especially the last one. Last वाला जो formula उसको बुलाते हैं Heron's formula. वो मैं पहले आपको explain करूँगा. Don't worry about it. And then we will start questions on it. Okay. So that is it for today. Thank you, all of you. धन्यवाद. Thank you, sir. Okay. Okay, Bye, sir. Bye, sir. Okay, bye.